اس وقت ہمارے پورے دیش میں ہی شاہ رخ خان کی آنے والی فلم یعنی پٹھان سے ریلیٹڈ ایک بڑا وواد جنم لے چکا ہے، جہاں ایک طرف دیش کے کچھ لوگ اس فلم کا وروध کر رہے ہیں، اس کا بائیکاٹ کر رہے ہیں اور اپنے ساتھیوں سے بھی اس کو نہ دیکھنے کی قسمیں کھلوا رہے ہیں، تو وہیں دوسری طرف ایک بڑا گروپ ایسا بھی ہے کہ جو شاہ رخ خان کی سپورٹ میں اتر آیا ہے۔ وہ نہ صرف اس فلم کو خود دیکھنے کا وعدہ کر رہا ہے بلکہ سوشل میڈیا پر یہ دکھانے کی کوشش بھی کر رہا ہے کہ وہ اپنی فیملی اور دوستوں کو بھی اس فلم کو ضرور دکھائے گا۔ مگر دوستو، اس پورے وواد کے بیچ وہ ایک سب سے اہم اور ضروری چیز کہ جس پر آپ میں سے بہت کم ہی لوگوں کی نظر گئی ہوگی یا پھر آپ میں سے کچھ ہی لوگوں نے اس پر غور کیا ہوگا، وہ دراصل اس فلم کا ٹائٹل پٹھان ہے، یعنی کہ پٹھان ورڈ۔ پٹھان کے بارے میں جاننا اس لیے بھی ضروری ہو جاتا ہے کیونکہ وہ کچھ لوگ جو اس فلم کا وروध کر رہے ہیں، ان کے مطابق ان کے وروध کرنے کے پیچھے جو بہت ساری وجہ ہیں، ان میں سے ایک بڑی وجہ اس فلم کا نام بھی ہے۔ یعنی ان لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ شاہ رخ خان نے اپنی نئی فلم کا نام یعنی ٹائٹل پٹھان رکھنے کی وجہ سے نہ صرف اس دیش میں رہنے والے لوگوں کی ہی توہین کی ہے بلکہ خود اپنے دیش کی بھی توہین کی ہے۔ مطلب شاہ رخ خان کو اپنی فلم کا ٹائٹل پٹھان رکھنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ مگر دوستو، اب سوال یہی ہے کہ آخر یہ پٹھان ہے کیا؟ پٹھان کون لوگ ہوتے ہیں، کہاں رہتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کہاں سے آئے تھے، ان لوگوں نے اتہاس میں کیا کیا تھا، یعنی ان لوگوں کا پورا اتہاس رہا کیا ہے؟ یہ لوگ مسلمان کب ہوئے تھے اور آج کے دور میں بھی مسلمان ہوتے ہیں یا کسی اور دھرم کو بھی فالو کرتے ہیں؟ اس کے علاوہ بھارت کی راجنیتی اور بھارت کے پورے اتہاس میں بھی ان لوگوں کا کیا یوگدان رہا ہے؟ تو چلیے آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی سب کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ RH نیٹورک کے نالجبل فرینڈز، پٹھان لوگوں کا اتہاس بھی بڑا دلچسپ رہا ہے، کیونکہ جہاں ایک طرف کچھ اتہاسکار ان کو سیدھے طور پر خدا کی ایک دوسری مخلوق یعنی کہ جناتوں سے جوڑتے ہیں، تو وہیں دوسری طرف اتہاسکاروں کا ایک گروپ ایسا بھی ہے کہ جو ان کا رشتہ اللہ کے ایک مشہور پیغمبر یعنی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے جوڑتے ہیں۔ ان کے مطابق یہ بنی اسرائیل یعنی آج کے یہودیوں کی ہی ایک نسل ہے کہ جو وقت کے ساتھ آج سے ہزاروں سال پہلے یہودیوں سے ایک قبیلے کے روپ میں بچھڑ گئے تھے۔ وقت گزرتا گیا اور جب آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس دنیا میں ظہور ہوا تو ان لوگوں نے ان کے اوپر ایمان لا کر اسلام دھرم کو اپنا لیا اور تب سے لے کر آج تک یہ لوگ مسلمان ہیں۔ وہیں اتہاسکاروں کا ایک گروپ ایسا بھی ہے کہ جو یہ مانتا ہے کہ دراصل پٹھان لوگ حضرت خالد بن ولید کی ایک بیٹی اور ان کی داماد کی نسل سے ہیں۔ فی الحال سچائی کیا ہے، یہی آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کی غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے اور تاکہ آپ لوگ ویڈیو دیکھتے وقت کنفیوز نہ ہوں، میں آپ لوگوں کو پہلے ہی بتاتا چلوں کہ دراصل پشتون، پختون اور پٹھان ایک ہی چیز ہے، کیونکہ آج کے دور میں ہم جنرلی جن لوگوں کو پٹھان بولتے ہیں وہی ایک لمبے وقت سے اپنے آپ کو پشتون یا پختون کہتے آئے ہیں۔ اس کے علاوہ افغان بھی انہی لوگوں کو ہی کہا جاتا رہا ہے۔ ہاں، وہ بات الگ ہے کہ آج کے دور میں افغان ان لوگوں کے ساتھ ساتھ ان سبھی لوگوں کو بھی بول دیا جاتا ہے کہ جو افغانستان میں رہتے ہیں، اب وہ چاہے کسی بھی دھرم کے ہوں یا پھر کسی بھی جاتی کے ہوں، بس افغانستان میں رہتے ہیں، اس لیے سبھی لوگوں کو افغان کہہ دیا جاتا ہے۔ دراصل دوستو، پشتون اور پٹھان یہ ایک نسل ہے اور جو بھی اس نسل میں پیدا ہوتا ہے ان لوگوں کو پٹھان ہی کہا جاتا ہے۔ ویسے ہی ایک نسل کے جیسے کہ ہمارے بھارت دیش میں بہت ساری الگ الگ نسلیں پائی جاتی ہیں۔ اب بات کریں اگر لوکیشن کے اینگل سے تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ ان لوگوں کی زیادہ تر آبادی آج کے دور میں پاکستان اور افغانستان کے ساتھ ساتھ ہندوستان میں پائی جاتی ہے۔ ان تینوں دیشوں کے علاوہ بھی آپ لوگ ان کو کچھ تعداد میں دنیا کے اور بھی بہت سارے دیشوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ افغانستان کی راجنیتی کو تو چھوڑ ہی دیجیے، ایون پاکستان کی راجنیتی میں بھی یہ لوگ اپنی ایک الگ پہچان بنا چکے ہیں۔ عمران خان جیسا پاکستان کا ایک بڑا اور مشہور لیڈر بھی دراصل ایک پٹھان ہی ہے۔ اس کے علاوہ افغانستان اور پاکستان کی کرکٹ ٹیم میں بھی آپ لوگوں کو پٹھانوں کے بڑے بڑے چہرے نظر آئیں گے، خاص طور سے پاکستان کے جو مشہور آل راؤنڈر ہیں یعنی کہ شاہد افریدی، وہ بھی دراصل ایک پٹھان ہی ہے۔ بات کریں اگر ایتہاسک طور پر تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ بھارت کے اتہاس میں ان لوگوں کا ہمیشہ سے ہی ایک بڑا کردار رہا ہے۔ دوستو، پشتون یعنی پٹھان قوم کو ہمیشہ سے ہی ایک غیرت مند اور طاقتور قوم کے روپ میں یاد کیا جاتا رہا ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ آج کے دور میں ان کا جو اپنا ایریا ہے یعنی کہ مین ایریا کہ جس کو افغانستان کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کو ایتہاسک طور پر گریو یارڈ آف ایمپائر کا نام بھی دیا جاتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے سلطنتوں کے قبرستان۔ وہ اس لیے کیونکہ بڑی بڑی وہ ساری سلطنتیں کہ جنہوں نے زبردستی اس علاقے پر قبضہ کرنے کی کوشش کی یا پھر جبراً ان لوگوں کو غلام بنانے کی کوشش کی، وہ لوگ کبھی بھی اس چیز میں کامیاب نہ ہو سکے۔ بڑی بڑی سلطنتوں کے لوگ اس علاقے میں آئے، انہوں نے خود آ کر اس علاقے میں اپنی قبریں کھودی اور بعد میں انہی قبروں میں ہی دفن ہو گئے۔
अब वो चाहे पुराने दौर की कोई बड़ी से बड़ी दुनिया की सल्तनत हो या फिर नए दौर के USSR यानी सोवियत संघ और अमेरिका हो, क्योंकि अमेरिका भी अभी जल्दी में हार कर इस पूरी मिसाल को सही साबित कर चुका है। इतिहासकारों के मुताबिक पठानों ने भारत के इतिहास में भी एक मेजर रोल प्ले किया है। अब वो चाहे बात हो महमूद गजनवी के दौर की या फिर मोहम्मद गौरी के दौर की या फिर भारत में कायम होने वाली दूसरी सभी बड़ी बड़ी और ताकतवर सल्तनतों के दौर की, हर दौर में ही पठानों ने अपने आप को दूसरों से अलग और बिल्कुल जुदा साबित किया है। किसी दौर में इन लोगों ने फौजी मदद की तो किसी दौर में अपनी समझ-बूझ से पूरी दुनिया को हैरान किया। इतिहासकारों का तो ये भी मानना है कि भारत में कायम होने वाली कुछ मुस्लिम सल्तनतें ऐसी थीं कि जो पठानों की मदद के बगैर कायम हो ही नहीं सकती थी। यही वजह है कि ये लोग लगभग सभी मुस्लिम सल्तनतों के दौर में और खासतौर से मुगलिया सल्तनत के दौर में दरबार के बड़े बड़े पदों पर फाइज रहे। इसके अलावा अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी जाने वाली भारत की जंग आज़ादी में भी ये लोग आगे आगे रहे। वैसे तो पठान फ्रीडम फाइटर्स की ये लिस्ट हद से ज्यादा लंबी है, मगर फिर भी इस लिस्ट में एक नाम ऐसा है कि जिसको अपनी इस छोटी सी वीडियो में भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है, और वो नाम है खान अब्दुल गफ्फार खान। वही खान अब्दुल गफ्फार खान के जो न सिर्फ गांधी जी से हद से ज्यादा इंस्पायर थे बल्कि गांधी जी के सबसे करीबी भी माने जाते थे। खुद गांधी जी भी इनसे हद से ज्यादा इंस्पायर हुए थे। वैसे तो भारत की आज़ादी के खातिर अपनी उम्र का एक लंबा वक्त जेल में गुजार देने वाले खान अब्दुल गफ्फार खान खुद बंटवारे के खिलाफ थे, मगर जब बंटवारा हो ही गया तो वो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान की साइड में पहुंच गए थे। खान अब्दुल गफ्फार खान का भारत की आज़ादी में क्या रोल था और गांधी जी उनसे कितना ज़्यादा इंस्पायर थे, इस चीज़ का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो इकलौते ऐसे पाकिस्तानी हैं कि जिनको देश आज़ाद हो जाने के बाद भी बल्कि कई सालों के बाद यानी 1987 में बाकायदा पाकिस्तान से बुलाया गया और भारत का सबसे बड़ा अवार्ड यानी कि भारत रत्न दिया गया था। ये पहली बार हो रहा था कि जब किसी पाकिस्तानी को भारत रत्न से नवाजा जा रहा था। फिलहाल दोस्तों, अब अगर बात करें इन लोगों के इतिहास के बारे में, क्या है इन लोगों का इतिहास क्या है और पठान लोग किसकी नस्ल से हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इस बारे में इतिहासकारों की अलग अलग राय पाई जाती है। कुछ इतिहासकार पठान लोगों का रिश्ता सीधे तौर पर हजरत तालूत के पोते यानी कि अफगाना से जोड़ते हैं। उनके मुताबिक आज के दौर के सभी पश्तून यानी पठान अफगाना की ही औलाद है। वही तालूत के जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वालिद यानी कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से पहले बनी इसराइल के बादशाह हुआ करते थे। आपको बता दूं कि हजरत तालूत के जो पोते थे यानी अफगाना, उनकी परवरिश भी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने की थी। बाद में जब ये अफगाना बड़े हुए तो उस दौर तक हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की इस पूरी सल्तनत पर उनके बेटे यानी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का राज हो चुका था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने भी अपने वालिद यानी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की तरह बाद में अफगाना को अपना प्यारा और करीबी बनाए रखा। इवन इनको अपनी फौज में बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां भी दी। मगर दोस्तों, इन लोगों से लगभग 400 से 500 साल के बाद कि जब बेबीलोन एक दुनिया में बड़ी ताकत बनकर उभरा था और दूसरी तरफ बनी इसराइल हद से ज्यादा कमजोर और बुरे हालात में पहुंच चुके थे, तो बेबीलोन के जालिम बादशाह यानी बख्त नसर ने बनी इसराइल के ऊपर हमला किया। इस हमले में जालिम बादशाह बख्त नसर ने न सिर्फ यहूदियों के सबसे पवित्र यानी मुकद्दस शहर यरूशलेम को बुरी तरह से जलाकर राख कर दिया था, बल्कि हैकल सुलेमानी को भी तबाह कर दिया था। हजारों की तादाद में उसने यहूदियों को कत्ल किया और हजारों की तादाद में ही बचे हुए बाकी सभी यहूदियों को वो अपने साथ गुलाम बनाकर बाबुल के इलाके में ले गया, जहां पर जाकर उसने बाबुल के आसपास के सभी इलाकों में उन लोगों को कबीले के हिसाब से आबाद कर दिया। हालांकि कुछ वक्त के बाद ही यहूदियों के इन बहुत सारे कबीलों में से कुछ कबीले बख्त नसर की कैद से भागने में कामयाब हो गए थे। भागने वाले यहूदियों में से जहां एक तरफ कुछ यहूदी कबीले तो आज के दौर के सऊदी अरबिया के शहर मदीने के इलाके में आकर आबाद हो गए थे, तो वहीं दूसरी तरफ भागने वाले कुछ यहूदी ऐसे भी थे कि जो भागकर और दूर गए और आज के दौर के अफगानिस्तान के इलाके में आकर आबाद हुए। हैरानी की बात यह है कि इन दोनों ही इलाकों में आकर आबाद होने वाले लोगों ने अपने अपने इलाकों का नाम खैबर रखा था, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि मदीने में भी यहूदियों का गढ़ तो मुसलमानों ने हजरत अली की शुजाअत और बहादुरी से फतह कर ही लिया था। मगर बात करें अगर अफगानिस्तान वाले खैबर की, तो आपको बता दें कि जब अरब में धीरे धीरे इस्लाम धर्म फैलना शुरू हुआ था, तो यहाँ पर कैस अब्दुल रशीद नाम के सरदार हुआ करते थे। मशहूर मुस्लिम सिपह सालार हजरत खालिद बिन वलीद की दावत पर उस दौर में अफगानिस्तान में रहने वाले मशहूर पठान सरदार यानी कि कैस अब्दुल रशीद अपनी कम्युनिटी के कुछ लोगों के साथ अफगानिस्तान से लंबा सफर तय करने के बाद अरब के शहर मदीना पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने न सिर्फ आखिरी पैगंबर यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पर इस्लाम कबूल किया था, बल्कि साथ ही साथ मुसलमानों के साथ कई बड़ी जंगों में हिस्सा भी लिया था। इवन ये नजरिया रखने वाले इतिहासकार तो यहाँ तक दावा करते हैं कि फतेह मक्का के साथ साथ खैबर की जंग में भी मुसलमानों की तरफ से कैस अब्दुल रशीद ने एक बड़ा किरदार अदा किया था। फिलहाल दोस्तों, इसके बाद कैस अब्दुल रशीद ने हजरत खालिद बिन वलीद की एक बेटी के साथ निकाह भी किया था।
ऐसा भी माना जाता है कि आखिरी पैगंबर यानी कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैस अब्दुल रशीद से रिलेटेड एक पेशन गोई यानी कि भविष्यवाणी भी की थी, जिसके मुताबिक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि कैस की औलाद इतनी ज़्यादा होगी कि वो दूसरी अक़वाम पर गालिब आ जाएगी और इन लोगों की इस्लाम से मोहब्बत इतनी ज़्यादा होगी कि जैसे वो लकड़ी के जिसके ऊपर समुद्री जहाज को तामीर किया जाता है। अरबी में उस लकड़ी को बुतान कहा जाता था, जो आगे धीरे धीरे बदल कर या फिर ये कहिए कि उसका प्रोनाउंसिएशन बिगड़ कर पठान हो गया और आज के दौर में हम लोग उसको पठान के नाम से ही जानते हैं। फिलहाल उसके बाद कैस अब्दुल रशीद अपने इलाके में वापस आ गए थे। यहाँ पर उन्होंने कुछ वक्त तक इस्लाम की तबलीग भी की थी। यहीं पर उनका इंतकाल हो गया था और यहीं पर ही उनको दफना दिया गया था। हैरानी की बात यह है कि आज भी पाकिस्तान की एक ऊंची पहाड़ी पर कैस अब्दुल रशीद के नाम से एक कब्र मौजूद है, जिसके बारे में लोगों का यही मानना है कि ये कैस अब्दुल रशीद की कब्र है कि जो हजरत खालिद बिन वलीद के दामाद थे, हजरत तालूत की 37वीं नस्ल से थे और आज के दौर के सभी पठानों के बाप हैं, यानी सारे पठान उन्हीं की नस्ल से हैं। हालांकि दोस्तों, आप लोगों को बताता चलूं कि कुछ मॉडर्न हिस्टोरियंस इस नज़रिए से पूरी तरह से नाइत्तेफाकी रखते हैं, यानी वो इस नज़रिए को मानते ही नहीं हैं, क्योंकि उनके मुताबिक पठानों का इतिहास हजरत तालूत से भी कहीं ज़्यादा पुराना है। उनका कहना है कि जिस दौर में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम या फिर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की हुकूमत हमारी दुनिया पर हुआ करती थी, पश्तून उससे भी कहीं पहले से अफगानिस्तान के इस इलाके में आबाद है। इतना ही नहीं, खुद पठानों के ही एक मशहूर हिस्टोरियन के जिनको सादुल्लाह जानबर्ग के नाम से जाना जाता है, उनका तो यहाँ तक कहना है कि दरअसल पश्तून कोई नस्ल नहीं है और न ही किसी एक इंसान की औलाद को पश्तून यानी पठान कहा जा सकता है, बल्कि एक खास इलाके में एक खास कल्चर के साथ और एक खास कायदे कानून के साथ रहने वाला हर इंसान पश्तून है और जो इस चीज़ से निकल गया वो पश्तून होते हुए भी पश्तून नहीं है। यानी उनका ये कहना है कि कुछ खास लोग जो दुनिया के एक खास इलाके में रहते हैं और एक खास तरह के कल्चर को फॉलो करते हैं और उनके यहाँ कुछ अपने अलग खास कायदे कानून पाए जाते हैं, वही लोग पश्तून कहलाते हैं और ये पिछले एक लंबे वक्त से चला आ रहा है। फिलहाल दोस्तों, हकीकत क्या है ये तो हम में से कोई भी नहीं जानता है। आप लोग मेरी आज की इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आखिर आप लोग पठानों के बारे में इस वीडियो से पहले क्या जानते थे और आप लोगों के मुताबिक आखिर पठानों के इतिहास से जुड़ा हुआ कौन सा वाला नज़रिया बिल्कुल सही है।